हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदतमातर भवेतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आमादेर ऊपर श्री गुरु तोमार अहोइतु की कृपाय पार। श्री गुरु ज्ञानानंद गुरु ज्ञानानंद तुमी जे निये एले जीवने आनंद। आमादेर ऊपर श्री गुरु तोमार अहोइतु की कृपाय पार। आमी छिलाम अंधकारे मायामय বিষয়ের ঘরে। आमी छिलाम अंधकारे मायामय বিষয়ের ঘরে। বুঝতে পারিনি আমি এ জীবনের কি মানে। বুঝতে পারিনি আমি এ জীবনের কি মানে। তুমি এসে নিলে এ অভাগার ভার করো গো তুমি আমারে উদ্ধার। তুমি এসে নিলে এ অভাগার ভার করো গো তুমি আমারে উদ্ধার। गुरु ज्ञानानंद गुरु ज्ञानानंद तुमी जे निये एले जीवने आनंद। आमादेर ऊपर श्री गुरु तोमार अहोइतु की कृपाय पार। দিলে তত্ত্বমসির দীক্ষা জানালে আধ্যাত্মিক শিক্ষা। দিলে তত্ত্বমসির দীক্ষা জাগালে আধ্যাত্মিক শিক্ষা। দীপ চক্ষু দিলে খুলে যাচ্ছিলাম আমি এতদিন ভুলে। দীপ চক্ষু দিলে খুলে যাচ্ছিলাম আমি এতদিন ভুলে। অবাক নয়নে দেখিলাম তারে, সে ছিল আমার জীবনের মূলে।
অবাক নয়নে দেখিলাম তারে, যে আছে সব জীবের জীবনের মূলে। শ্রী গুরু জ্ঞানানন্দ, গুরু জ্ঞানানন্দ, তুমি যে নিয়ে এলে জীবনে আনন্দ। আমাদের উপর শ্রী গুরু তোমার অহৈতু কি কৃপায় পার। সহজ কিয়া যোগ সাধন, এ একটি অতীব গোপন। সহজ কিয়া যোগ সাধন, এ একটি অতীব গোপন। নিত্য করিলে পাবে অমূল্য সে রতন। নিত্য করিলে পাবে অমূল্য সে রতন। সদ্গুরু জ্ঞানানন্দ মিলে যদি তোমার ভাগ্য বলে। সদ্গুরু জ্ঞানানন্দ মিলে যদি তোমার ভাগ্য বলে। ধন্য হবে মানব জীবন, অন্তিমে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। ধন্য হবে মানব জীবন, অন্তিমে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। শ্রী গুরু জ্ঞানানন্দ, গুরু জ্ঞানানন্দ, তুমি যে নিয়ে এলে জীবনে আনন্দ। আমাদের উপর শ্রী গুরু তোমার অহৈতু কি কৃপায় পার। শ্রী গুরু জ্ঞানানন্দ, গুরু জ্ঞানানন্দ, তুমি যে নিয়ে এলে জীবনে আনন্দ। গুরু জ্ঞানানন্দ, গুরু জ্ঞানানন্দ, তুমি যে নিয়ে এলে জীবনে আনন্দ। তুমি যে নিয়ে এলে জীবনে आनंद। बोलिए गुरु महाराज जी की जय। साधु 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 साधु। আমাদের প্রাণপ্রিয় গুরুদেব মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন, তার চরণে কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করি। উপস্থিত সাধু সজ্জন ব্রহ্মচারী ও উপস্থিত ভক্তিমতী মাতৃমণ্ডলী, সুধী ভক্তবৃন্দ, সকলকে সাধুবাদ। ওং নমো নারায়ণায়। যতদিন না আমরা গুরুদেবের চরণে উপনীত হতে পারছি, ততদিন যেমন আর 5টা জীবন এবং গাছের যে ফুল প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হচ্ছে, আবার পরের দিন ঝরে যাচ্ছে, তার আয়ু হচ্ছে 1 দিন কি 2 দিন। কিন্তু আমাদের মানব এই যে জীবন, এও একটা সেই ফুলের মতো। এই কলিযুগের মানুষের আয়ু 100 বছর। 100 বছর তার আয়ু স্থির করা আছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মানুষ, কেউ 10 বছর জীবিত থাকে, হয়তো কেউ কেউ 20 বছর, কেউ 50 বছর, কেউ 80 বছর। যে যেমন জীবনের পুঁজি নিয়ে আসে, সে তেমন এই জগতে তার কর্মফল অনুযায়ী প্রারব্ধ ভোগ করে। তারপরে আবার সে এই লোক থেকে পরলোক গমন করে।
কিন্তু এই যে বারবার এই জন্ম এবং মৃত্যু, মৃত্যু এবং জন্ম, এর যে প্রকৃত গূঢ় রহস্য, সেই রহস্য আমরা কখনোই বুঝতে পারি না বা বুঝার চিন্তাও করি না। ভারতের একমাত্রই আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মেই এই জন্ম এবং মৃত্যু, এই মৃত্যু এবং জন্ম, এই যে প্রবাহ বর্তমান মানুষের মধ্যে চলছে অনাদি কাল ধরে, কিন্তু সে থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো রাস্তা পূর্বে কেউ দেখাতে পারেনি। একমাত্র আমাদের এই হিন্দু সনাতন ধর্মেই আপনি কি করে অমরত্ব লাভ করবেন তার পথ বলে দিয়েছে উপনিষদ, ভগবদ গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত, বিভিন্ন পথে যে আপনি কি করে এই মানব শরীর থেকে আপনি কেমনভাবে আপনার শরীর এমন একজন আছে যে আছে বলেই এই শরীর আছে, সব কিছু আমরা করতে পারছি। কিন্তু সেই যতদিন আমার শরীরে যতদিন তিনি আছেন ততদিন আমার সব কিছু, কিন্তু যখন আমার শরীর থেকে সে বেরিয়ে যাচ্ছে, সে কে এইটা কেউ আমরা চিন্তা করি না। একজন তো এমন একজন আছে সত্তা, যার বলে বলিয়ান হয়ে এই শরীরটার দ্বারা আমি ছোট থেকে কৌমারং যৌবনং জরা থেকে একদম বুড়ো অবধি কাজ করছি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে এই শরীরটাকে কে চালাচ্ছে, এই শরীরের নিয়ন্ত্রণ শক্তি কে, কার দ্বারা এই শরীর পরিচালিত হচ্ছে, কে এর মধ্যে আছে। তাই পূর্বের আমাদের মুনি ঋষিগণ তারা তাদের গুরু দেবের কৃপাবশে যে তত্ত্ব পেলেন, সেই তত্ত্ব তারা বুঝলেন যে এই শরীরের ভেতরে একজনকে আছে। কে আছে না, এই শরীরের ভেতরে আত্মরূপী ভগবান আছে। সবার শরীরে আত্মা আছে এবং এই আত্মা যতদিন এই শরীরের মধ্যে থাকে ততদিনই আমরা সব কিছু করছি, কিন্তু এই আত্মা যখন আমার শরীরের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন এই শরীরটার আর কোনো দাম নেই, তখন শরীরটা মাটিতে পড়ে থাকে। দুদিন আগে আমি আশ্রমে এক ব্যক্তি দুপুরবেলাতে শয্যা নিদ্রায় গেছিলেন, খুব খুব নিদ্রা, প্রচণ্ড জোরে জোরে তিনি নাক ডাকছেন, শুয়ে আছেন। তো আমার নাক ডাকাটা খুব মানে প্রচণ্ড নাক ডাকছে আর কি, অটপটা। তো আমি গেলাম, দিয়ে দেখলাম ব্যক্তি কেমন করে শুয়ে আছে। তো শুয়ে আছে একদম পুরো উপর হয়ে শুয়ে আছে, আর তার এমন মানে বিকৃতি শরীরটা। তো আমি একটা ভিডিওতে ফোনে একটা ছবি নিলাম ওনার, যে এখন এই ছবিটা একটু তুলে রাখি, কেননা আমরা যে মানুষ যখন ঘুমিয়ে যাই তখন যে আমরা কি করি, কি অবচেতন, আমার শরীরটার কি অবস্থা সেটা আমরা বুঝতে পারি না। তো আমরা হয়তো ছবিটা নিয়ে হাসাহাসি করলাম বা কিছু, কিন্তু তেনাকে যখন দেখালাম তার মর্মটা যখন তিনি বুঝলেন যে ছবিটা কি রকম, মানে তিনি কেমন জড় পদার্থের মতো পড়ে আছেন আর কেমন করছেন। তো আমরা সকলেও সেই ওই রাত্রিবেলাতে যখন শুয়ে যাই তখন আমাদের শরীরটা ওই জড় পদার্থের মতোই শুয়ে থাকে, তারপরে আবার সারাদিন যখন উঠি তখন যা কিছু চলাচল করছি। তো সেই রকম আমাদের শরীরে সেই যে আত্মা, তাকে দেখার যে রাস্তা ভারতবর্ষে একমাত্র এই শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় সহজ ক্রিয়াযোগ সাধন হচ্ছে এমন একটা বিজ্ঞানসম্মত সাধন, যেই সাধন দ্বারা আমাদের গুরু পরম্পরার যে সমস্ত গুরুগণ আছেন তারা আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দেন, বলে দেন। কি বলছেন ভগবান কোথায় না, এই দ্বাদশ অঙ্গুলো জায়গায় আমার এই কুটস্থেই তিনি আছেন বসে, কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। সেই দেখার রাস্তা কে করে দেন না, সেই গুরুদেব। তাই যখন যুদ্ধ হচ্ছিল আমাদের মহাভারতের, তখন যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুন যুদ্ধে সে দাঁড়াতে কিছুতেই সমর্থ ছিল না, কিছুতেই দাঁড়াতে চাইছিল না, যে না আমি আমার এসব স্বজন বন্ধু বান্ধবের এদের সঙ্গে আমি মারতে চাই না, এদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না। তখন অর্জুন ধনুর বাণ ত্যাগ করে বসে গেছিল যখন রথে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললে যে তুমি
যাদেরকে আজকে চিন্তা করছো যে মারবে না বা এদের সঙ্গে বধ করতে ইচ্ছা করছো না, এসব তোমার রাজ্য তোমার দখল করে নিয়েছে। আর তুমি যদি এদেরকে না মারো তাহলে তুমি কখনোই তোমার সেই রাজত্ব ভোগ করতে পারবে না। রাজত্ব মানে কিন্তু এই রাজত্ব ভৌতিক রাজত্ব তিনি কথা সেখানে বলেননি, সেখানে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের কথা বলেছিলেন। মানে এই শরীরের মধ্যে আমার যে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় এসব যে আছে তারা সব আমরা অসংযত, তাদেরকে সংযত না করলে আমার শরীরের ভেতরে যে পরমাত্মা আছেন, আত্মারূপী যে পরমাত্মা, তাকে দেখার কোনো রাস্তা নেই। সেই রাস্তা কে বলে দিয়েছেন না শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু পরম্পরার যেসব গুরুগণ আছেন তারা আমাদেরকে সেই রাস্তা বলে দিয়েছেন। কোথায় না এই যেখানে আমরা টিকা নিলাম এক্ষুনি চন্দনের, সেই জায়গায় মায়েরা যেখানে সিঁদুর পরে সেই জায়গা হচ্ছে এই দুই ভুঁড়ের মাঝখানে ত্রিনেত্র যাকে বলে, থার্ড আই। তো সেখানেই আপনারা গুরুদেব তার শক্তি সঞ্চার করেন শিষ্যের মধ্যে, এবং শিষ্যরা তার মাধ্যমেই সে জানতে পারে যে আমি প্রকৃতকে এবং আমাকে কি করতে হবে। তাই ধন্য আমরা একজন গুরুদেব পেয়েছি যিনি আমাদেরকে তার সাধন শক্তি দ্বারা আমার এই দিব্যচক্ষু, যে গানে বললাম না দিব্যচক্ষু, তিনি উন্মিত করছেন। কে করছেন? গুরুদেব। যেমন অর্জুনকে দিয়েছিলেন, অর্জুনকে ভগবান বলেছিলেন এই কথা যে তুমি এই চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে সমর্থ হবে না, আমাকে মানে ভগবানকে দেখতে সমর্থ হবে না, তোমাকে আমি একটা দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, সেই দিব্য চক্ষু দেওয়ার ফলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একটা দিব্য চক্ষু দিলেন। ঠিক সেই রকম আমরা এতই ভাগ্যবান যে আমরা আমাদের সেই গুরুদেব পেয়েছি, শ্রীকৃষ্ণরূপী গুরুদেব, যিনি আমাদেরকে দিব্য চক্ষু দিয়েছেন, যার জন্যে আজকে আমরা এই যে সকলে আমরা যারা বসে আছি এখানে সকলকে কিন্তু তিনি এই দিব্যচক্ষু দান করেছেন। এবার যে যেমন সাধন করবে তার তেমন সাধন অনুযায়ী সে কাজ বা তার অনুভূতি হচ্ছে। তাই সকলেই বলছে যে চেলা মিলে অনন্ত কিন্তু গুরু না মিলে এক। মানে অনেক চেলা তো অনেক মিলছে কিন্তু একজনও গুরু, সদ্গুরু মিলা মানে প্রচুর পূর্ণ ফলের বা একটা শরীর পেয়েছি এবং সদ্গুরু পেয়েছি। তাই গুরুদেব আছেন এখানে, তিনি তার অমৃত বাক্য যে বলবেন সেই কথা আপনারা যদি মনন করেন, শ্রবণ করেন এবং নিদিধ্যাসন করেন তাহলে আপনাদের সকলের জীবন হবে মঙ্গলময়। এবং আমরা যে বারবার এই জন্ম এবং মৃত্যু এবং জন্মের যে করাল গ্রাসে আমরা পড়ে আছি, আমরা বুঝতে পারছি না যে আমরা কি একটা চক্রের মধ্যে পড়ে আছি। তাই উপলব্ধি করুন নিজেকে যে আমার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। সুতরাং গুরুদেব আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে ভাগবত এবং বিভিন্ন বই, বিভিন্ন গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দিচ্ছেন, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলোকে যদি আমরা না পড়ি এবং না কিনি এবং তাকে যদি যত্ন না করি তাহলে কিন্তু আমার কিছুই করা হচ্ছে না। গুরুদেব কেন করছেন এত? এই যে আহমেদাবাদে এসে আজকে সৎসঙ্গ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যাতে আধ্যাত্মিক পথে আরও অগ্রসর হতে পারি, তারই জন্যে তিনি এত পরিশ্রম করে আজ গুজরাট, কাল মধ্যপ্রদেশ, পরশু পশ্চিমবঙ্গ যাচ্ছেন, বিভিন্ন জায়গায় সৎসঙ্গ করছেন। এই সৎসঙ্গের মাধ্যমে তিনি আমাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করছেন যে হে জগৎবাসী, হে মানবগণ, তোমরা জাগো। তা না হলে আমরা এই জন্ম মৃত্যুর করাল গাছ থেকে কোনোদিনই মুক্তি পাবো না। বাবার একটা গান, গিরি গুহা সঙ্গীতাঞ্জলি থেকে গুরুদেবের একটি গান, এবং তারপরেই গুরুদেব তার অমৃতময় বাণী বলবেন। এই গানের মাধ্যমে আমি এই জন্যই গাইছি যে গানটাতে গুরুদেব সবই বলে দিয়েছেন আমাকে কেমন করে কি করতে হবে জীবনে। শুধু এই গানগুলো শুনলে হবে না, তার সঙ্গে নিজের জীবনেও এটাকে প্রতিফলন করলেই আপনি হবেন ধন্য। ইষ্টদেবের কথা ভেবে ভেবে যেন সারা দিন কেটে যায় আমার, সারা দিন কেটে যায়। ইষ্টদেবের কথা ভেবে ভেবে যেন সারা দিন কেটে যায়। তাহার নিমিত্ত কর্ম করে করে
আত্ম সুখ যাতে চাই, ইষ্ট দেবের কথা ভেবে ভেবে যেন দাদরা, ইষ্ট দেবের কথা ভেবে ভেবে যেন সারা দিন কেটে যায়, সারা দিন কেটে যায়। এ জীবন যখন তার দয়ার দান, কেন না হইবে নিবেদিত পান। এ জীবন যখন তার দয়ার দান, কেন না হইবে নিবেদিত পান। একান্তে বসিয়া গাহি তার গান, এ জীবন যেন তা চায়, ইষ্ট দেবে কথা ভেবে ভেবে যেন সারা দিন কেটে যায়, সারা দিন কেটে যায়। হরিয়াম কাস্তার গুরুদেব আছেন মঞ্চে, এখন চটপট কুঞ্জরিকা করা আছে, গুরুদেবী এখন বলবেন। আমরা এখন আমাদের বাণী বিরাম দিয়ে এখন গুরুদেবের যার অমৃত বাণী শোনার জন্য আমরা সকলে বসে আছেন, আমরাও বসে আছি, এখন তারই কাছে আমরা এই বাণী বিরাম দিচ্ছি। হরিয়াম কাস্তার। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुडध्वजं, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। आत्मा तं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं, पूजाते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। आज का दिवस एक विशेष पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित सत्संग सभा के अंदर प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, उनके 5 प्रकार उपदेश हैं, उनमें से ये भी एक है, प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन सत्संग करना तो बड़ी मुश्किल हो सकता है। कैसी? एक सत्संग का आयोजन करते समय तरह तरह के चीज जुगाड़ करना पड़ता है, धन का खर्च करना पड़ता है, बहुतों को बुलाना पड़ता है। ये सारे इंतजाम इकट्ठे हो तब जाके सत्संग का समावेश हम सभी लोग स्वीकार लेते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। किंतु लाहिड़ी महाशय जी ने कहा प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। कैसे होगा? कुछ रहस्य तो जरूर है। आपके भीतर आप जो शरीर लेके बैठे हैं, एक काया, एक पंच भौतिक शरीर है, 5 भूतों से, मतलब 5 महाभूत का समावेश आपका शरीर है। भूत क्या है? क्षिति आप तेज मरुत बुम, एक भूत है, पंच महाभूत। इसी से बना हुआ है मानव काया। इस शरीर लेके आप लोग यहाँ पर विराजमान है और इसी शरीर में 5 चीज इकट्ठे रखकर इसी को संचालन करने वाला कोई दूसरा है। उन्हीं को हम सबको नमन करते हैं। नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। और इसी स्थल पर जितनी मूर्ति बैठे हैं, सभी के भीतर वही वासुदेव रूपी परमात्मा विराजमान है। उन्हीं को नमस्कार करके एवं क्रियावान साधक साधिका, साधु सज्जन मंडली एवं आध्यात्मिक पंथ के पथिक भावुक सभी के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायणम 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 लक्ष्मी नारायणम लक्ष्मी नारायणम लक्ष्मी नारायणम बद्री नारायणम लक्ष्मी नारायणम लक्ष्मी नारायणम लक्ष्मी नारायणम बद्री नारायणम गंगा नारायणम गंगा नारायणम गंगा नारायणम
नारायणम गंगानारायणं 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 नरो नारायणम नरो नारायणम नरो नारायणम नरो नारायणम नरो नारायणम नरो नारायणम नारो नारायणं नारो नारायणं नारायण 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 बोल रे मानव जीवन तेरे बड़ी अनमोल रे नारायण 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 बोल रे मानव जीवन तेरी बड़ी अनमोल रे नारायण 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 बोल रे मानव जीवन तेरी बड़ी अनमोल रे नारायण 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 बोल रे मानव जीवन तेरी बड़ी अनमोल रे श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम। एक धर्म सभा हो रहा था, लेकिन मनुष्यों का नहीं, चिड़ियाओं का। आपने भी पहले बहुत जन्म ग्रहण करके अब मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। तो जब आप भी चिड़िया थे तो आपके सामने चिड़िया लोग जब आकाश मार्ग पे उड़ते हैं, स्थान से स्थानांतर जाते हैं, ऐसी विचित्र स्वभाव वाले दृश्य को देख के आप स्तंभित हो जाते हैं। तो आपने भी जब इसी प्रकार जन्म लिया था तब का एक बात है। तो सभा हो रहा था, तरह तरह के जीव आ गए थे, मयूर भी आए हुए थे, कौआ, उसमें बगुला और तरह तरह के जीव, और उनमें आया था उल्लू। उल्लू तो समझते हैं, लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी माता के पास जो रहती हैं, उल्लू उसके नाम है। बंगाल की भाषा में कहते हैं पेंचा। पेंचा का स्वभाव है, वो दिन में नहीं देख पाते, रात को दिखते हैं। उनका आंख रात को दिखता है, दिन में नहीं। तो सत्संग सभा में वो भी आके बैठा हुआ था, उल्लू भैया। तो सभा करते से मयूर भी आया था। मयूर राजा बना था, सभापति बना के रखा वहाँ पर मयूर को। क्यों बनाया न, मयूर का पूंछ लेके भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर लगा दिया। इतनी सुंदर प्राणी आप तो देख के स्तंभित हो जाएंगे, कैसी परमात्मा ने बनाया। एक छोटा सा अंडा, उसके भीतर जब जीव निकाल के आ जाते हैं अंडा फोड़ के, लेकिन वही मोर का माता जी ने अपनी अंडा देने का बाद 21 दिन तक बिना खाए पिए उठे उसी अंडा को दबा के पंखों का माने पंखुड़ी के भीतर वो बैठती है, जब तक बच्चा नहीं फूटे तब तक। लेकिन जब बच्चा फूट के निकला, इतनी छोटा सा, बड़े हो गए, देखा ना हमारे माताओं का जैसी जटा है, केस, मोर का भी इतने बड़े जटा है, उसको लेके घूमते रहते हैं। उनको राजा बना दिया, तुम राजा हो, मतलब सभापति। तो उनने बोल रहे थे, सुनो भैया पंछी, आज जिनका बातचीत हो रहे हैं वो मेरे परमात्मा है। ये सूर्य भगवान जो सामने दिख रहे हैं, ये भी उनकी अंश है, परमात्मा का आंख है सूर्य भगवान। तो देखो सूर्य भगवान है,
सभी लोगों ने देखा, जिनका आंख था सभी लोगों ने देख रहे थे सूर्य भगवान है। लेकिन उनने पूछा, अब लोगों ने देखा ना? हाँ देखा। लेकिन उल्ला भैया कहते नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, मैं मानता ही नहीं। तो उनको पूछा गया तुमने क्यों नहीं देखा? अरे हम सब लोग देख रहे हैं, वो परमात्मा सूर्य भगवान विराजमान है आकाश मंडल में, जिनके प्रकाश से सारा विश्व मंडल प्रकाशित है। वो बिल्कुल मानता ही नहीं, नहीं 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 नहीं। तो आखिर तक जो मोर था उनने मुस्कुराए, बोले क्यों नहीं दिख रहे हैं? ना तुम्हारा आंख ऐसी है जिस आंख से दिन में सूर्य भगवान को नहीं दिखते। रात तो मिलते नहीं, तुम्हें आंख नहीं दिख पाते सूर्य भगवान को, जो दिन का अंधा है और रात का अंधा नहीं है। और आपको पूछा जाए रात को दिखता है? नहीं नहीं, अंधा दिन ही दिखता है, अंधेरा में कैसे दिखे? उल्लू दिखता है। इसी प्रकार आपके भीतर भी एक ऐसी परमात्मा है जिनको दिखने के लिए एक आंख का जरूरत होता है। वही आंख के नाम है तीसरी आंख। आप जब पढ़ रहे थे पहली कक्षा में, एक चंद्र दीप पक्ष तीन नेत्र, आपने पढ़ा गया ना तीन नेत्र, लेकिन तीन नेत्र आप कभी समझा कि मेरे तीन नेत्र कहाँ है? तीन नेत्र दो तो सबको दिखता है, लेकिन तीसरी आंख वही देता है जो जिनको कहा जाता है गुरुदेव। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं वही गुरुदेव को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे तीसरी आंख दिखला दिया। ये आंख बंद करने से वही आंख दिखता है। वही आंख क्या दिखता है? परमात्मा को दिखता है, ज्योति के स्वरूप में हमारे शरीर में निवास कर रहे हैं। आज जो नहीं देखते वही उल्लू है। क्यों ना? उनका दिखने का जो आंख है ना, अभी भी प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रतिदिन क्रियायोग का अभ्यास करते करते जो क्रियायोग आपको मिला है, क्रियायोग का पहला सोपान क्या है? स्थिर सुखमासनम। स्थिर होके, सीधा होके, पद्मासन लगा के एवं लाइन बना बना के। आप लोगों ने हर एक सत्संग में जाते हैं और लाइन बना बना के बैठते हैं, और यहाँ पर आप लोग कैसी बैठी हैं? भूल गए हैं। सही है, भूल गए। माता जी के गर्भ में जैसे परीक्षित राजा ने माता जी के गर्भ में, जिनकी कृपा से उन्होंने जीवित हो गए थे, और अश्वस्थामा ने उनको ब्रह्म बाण चला के मार डाला था माँ की पेट में निवास करते समय। लेकिन परमात्मा वासुदेव ने उनको बचाया, जीवित किया, और उनके साथ वार्तालाप हुआ। फिर उन्होंने जब जन्म लिया तब ढूंढ रहे थे, मैंने माँ की गर्भ में निवास करते समय जिनको देखा था वो यहाँ पर कहाँ है? तो वही तीसरी आँख खोल जाए तो आप सभी में दिखेंगे। आपका इष्ट देव आप में भी है। यो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्हं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वही परमात्मा है। लेकिन शरीर है पंच भौतिक, और शरीर में जितनी भी देवी देवता विश्व मंडल में जो कुछ भी दिख रहे हैं वो हमारे शरीर के भीतर हैं। शरीर एक शक्ति का, जो शक्ति जैसे यहाँ पर बिजली का प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मीटर भी लगा हुआ है। फिर बाहर है ट्रांसफार्मर, फिर जाके दूसरे जगह में बड़े पावर हाउस, फिर जहाँ बिजली उत्पादन होता है सरदार सरोवर में नर्मदा जी के किनारे, वहीं से बिजली का सप्लाई होता है। आपका शरीर में भी उसी प्रकार 5 बिजली उत्पादन केंद्र स्थापित है।
मूलाधार केंद्र है। देखा ना जिन लोगों ने गए हैं जालमपुर आश्रम, वहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में मनुष्य का शरीर का फोटो लगा हुआ है। शरीर का फोटो में आप जो बैठे हुए हैं ना, आपका रीढ़ है ना, इतने बड़े रीढ़ हैं, केवल हड्डी हड्डी को जोड़ जोड़ के रीढ़ बनाया गया, और शक्ति का संचालन उसी से ही होता रहता है। उसके कहा जाता है रीढ़। जैसे ये स्टैंड है, स्टैंड में इतने बड़े और एक डंडा लगा दिया है। अगर स्टैंड, ये जो स्टैंड है ये सीधा ना हो तो ये गिर जाएगा। तो इसको सीधा रखने के लिए नीचे भी एक प्यूड़ी बना दिया गया। तो ये प्यूड़ी है आपका पद्मासन। ये प्यूड़ी के द्वारा, मतलब पद्मासन के द्वारा आपका रीढ़ को सीधा करके उसके द्वारा ही श्वास प्रश्वास का संचालन, और संचालन से मंत्र सहयोग से ही शरीर स्वस्थ बनाने का एक स्थिति है। हमारे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने प्रकृति का पाठशाला में पढ़ा। आज का दिन है गोवर्धन पूजा का दिन। वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था द्वापर के शेष में, तो उन्होंने देखा जे हमारे गोप परिवार केवल नहीं, जो भी मनुष्य हैं इन लोगों ने इंद्र देवता का पूजा करते हैं। इंद्र देवता का पूजा करने का मतलब क्या है? इंद्रियों का पूजा। आपका शरीर के भीतर ये शरीर स्थूल शरीर है, लेकिन इसमें सूक्ष्म रूप में 10 इंद्रिय दिखता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां दिखते हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, त्वक, जिह्वा, आँख, कान, नासिका और जिह्वा और त्वचा, चमड़ा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आत्मा को अनुभव करने का इसमें सामर्थ्य है। और कर्मेंद्रिय है 5, हस्त, पद, लिंग, गुज्य, वाक, हाथ, पैर, लिंग और गुदा और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रिय। ये 5 को संचालन करने वाला है आपका मन। मन दिखता नहीं है, और मन को स्थिर आप करने के लिए एक क्रियायोग का साधना कर। लेकिन मन, जैसे एक माता जी थी, उनका सवेरे से यहाँ का निमंत्रण पता चला, कोई रोज से आज आएगी, इसलिए अपने बच्चा को समझा रही थी, बेटा सब सत्संग में जाके वहाँ पर चुपचाप बैठना है, नहीं तो तेरे को नहीं ले जाऊंगा। तुम्हारे दादी माँ के पास छोड़ के मैं जाऊंगी और सत्संग सुन के आऊंगी, और जो मैंने सुना है वही तुमको सुनाऊंगी, तुम सुन लेना। नहीं माँ मुझे जाना है, नहीं माँ नहीं, तू बड़ी उत्पाटांग है। वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर हल्ला मचाएगा, नहीं तो सो जाएगा, तुमको लेके मेरे अर्चन होगा सत्संग में, बाधा है तू सत्संग में, तेरे को नहीं ले जाऊंगा। नहीं माने नहीं, और माता जी निकलने के पहले जाके रास्ता में बैठा गए, मुझे ले चल माँ, देख मान लेना मैंने जो कहा था, हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा। वो आया और बैठ गया सामने, और बैठ के थोड़ी देर के बाद कहते हैं माँ मुझे घर जाना है, माँ घर जाना है। तुमको कहा था ना, ना मैं तो कहा था यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने तो समझा था तुम जाओगे वहाँ पर खाने का चीज़, पीने का चीज़, पकोड़ा का चीज़, यहाँ तो कुछ नहीं है माँ, मुझे घर जाना है। रोने लगा। अरे आपत्ति आ गए, आपत्ति, तो उनने उसको उठाया। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे ना, अरे माता जी बच्चा लेके पीछे जाओ, सामने बैठ गई
और सभी का सत्संग में वो बाधा डालने वाले हैं। जाओ, बेचारी क्या करे, उठ गई, पीछे जाई के बैठ के सुनती हैं और बच्चा को गोदी में पीठ रीढ़ में थपड़ा थपड़ा के, रीढ़ में छोटे बच्चा नहीं सो रहा है तो आप उसको रीढ़ में थपड़ाएंगे तो सो जाएगी। क्योंकि रीढ़ ऐसी एक चीज़ है, आपका शरीर का सारा शक्ति उसी के द्वारा ही संचालन होता है। और आपको जब प्राणायाम मिला है गुरु जी के दिया हुआ साधना, तो ये बच्चा कौन है? आपका मन ही वही बच्चा है। मन ज़्यादा पसंद करता है वही मेला में, खाने की दुकान में, स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, कहीं सत्संग में पसंद नहीं करता है और कचरा लेके खेलता रहता है। वही है आपका मन। मन चाहता है विषय, और मन के निर्देशना से ये इंद्रियां सारे चलते हैं। मन कहता है देख तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बाबा जी का सत्संग हो रहा है, नाचा। तो मन कहता है कान को, अरे भैया क्या हो रहा है, ना बाबा जी कुछ कह रहे हैं अच्छे अच्छे बात। तो इसके बाद क्या हो रहा था, तो कहते यहाँ से उठ चल, पैर उठ जा, पैर खड़े हो गए। तो हाथ कहने लगे, अरे तुमने आया था यहाँ प्रसाद मिलेगा, कम से कम आखिरी में चरणामृत लेके जाओ। नहीं माना, उठ के चल दिया। तो मन ही मन के संचालन से सारा शरीर का इंद्रियां जो संचालित होते हैं, अगर आप वही मन को ही वशीभूत कर लेंगे क्रिया जो करते करते, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप अपनी मन को बस करना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको बुझाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपको सात्विकी आहार लेना पड़ेगा और सात्विकी व्यवहार करना पड़ेगा, संयम जीवन यापन करना पड़ेगा। मान लीजिए कार्तिक का महीना है, गिरि गोवर्धन पूजा करने के लिए ब्रजगोपियां जाती रहती हैं, तो उनको संयम साधन के लिए ही निर्देश है। आप संयम साधन नहीं करेंगे तो मन का वशीभूत करना किसी के बस की बात नहीं है। इतनी चंचल क्यों है बच्चे लोग? चंचल का प्रधान कारण है माता पिता से जो जन्म लिया गए, माता पिता असंयमी है, इसलिए संतान उनको ऐसी ही मिला है, चंचल बालक। अतएव माता जी से ही, जिन माता से वो जन्म लेता है, कहते हैं कुशील मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कृपण कुलदेशेन। कुल का दोष से कृपण होता है लोग, और आत्मदोष से न दारिद्रता, और खुद मेहनत करता नहीं है तो उनका दारिद्रता अपने आप आके पहुंचेगा। अतएव आप क्रियाजों को अभ्यास करके वही परम धाम जाने का, जिसलिए आपको मानव जीवन मिला हुआ है, वो काम नहीं करेंगे तो आप परम धाम कैसे जा सकते हैं? और इसी जन्म में मानव जन्म प्राप्त करके जिन लोगों ने आत्मज्ञान लाभ करने का यत्नवान नहीं किया है, और इसी जन्म में मानव जन्म प्राप्त करके जिन लोगों ने आत्मज्ञान लाभ करने का यत्नवान नहीं किया है, ये जे गुरु महाराज जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका बार बार सत्संग में कहते थे, कोयम कोस्तम कुतो आयात को में जननी को में तात कोयम कोस्तम कुतो आयात को में जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारम विषम तगता स्वप्न विकारम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती बालस्तावत
क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्त वृद्धस्तावत् चिन्तामग्ना परमे ब्राह्मणी कोऽपि न लग्ना भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम। कोयम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हुआ हूँ, मरने का बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा, मेरे माताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, इष्टि परिभाव है। इस प्रकार चिंतन करके आत्मस्वरूप को जानो। बालस्तावत क्रीडासक्त, जब आपका बचपना आया तो बचपना में बच्चे लोग खेलने कूदने में मस्त हो जाते हैं, आप पिटाई करते हैं। जैसे देखा ना, माता जसोदा कन्हैया को बांध दिया था पेड़ में, बांध के बार बार उन्हें अंगुली दिखा दिखा के उनको शासन किया। केवल स्नेह से काम नहीं बनेगा, आप बच्चों को दुष्टाई करता है, अपने शासन नहीं किया है तो बिगड़ जाएगा। एक माता जी थी, उनको 2 बेटा थे, बचपना से अच्छे खुद माताजी जब पिताजी जब पढ़ाते हैं ना, बेटा अगर पढ़ने के उनका जोश है तो पढ़ाते हैं, विदेश भेज देते हैं। लेकिन उनका एक बेटा था, 2 बेटाओं में बड़े बेटा थोड़ा सा हाथ खोर थे, माने बच्चों का पेन ले लेना, पिताजी का जेब से पैसा ले लेना और चुटका गुटका खाना, बीड़ी सिगरेट खाना और मेला के दिन मदिरा पीना, सब कुछ करते थे। माताजी जानती थी, जान के भी उनको शासन नहीं किया, केवल स्नेह करती थी और शासन नहीं करते थे। और इसका फल क्या निकला, बहुत अच्छे पढ़े, खूब पढ़े और पैसा कमाने के लिए नौकरी लगे, नौकरी में लग गए और नौकरी अच्छे नौकरी लगे, पढ़ाई अच्छा किया। लेकिन उनका जो पहले का आदत है ना, वो छूटा नहीं। वहाँ पर ऑफिस में कुछ 1 के 2 करने लगा, 3 के 4 करने लगा, इस पर कर करके उसने फंस गए। और फंसने के बाद किसी प्रकार कसरत करके वहाँ से निकल के आ गए गांव और दूसरे उनने कारोबार खोल लिया। लेकिन वहाँ पुलिस में वहाँ का जो मैनेजर थे उनको अदालत में कर दिया और पुलिस ने ढूंढने लगी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, और ढूंढते ढूंढते उनको पाया और उनको शादी किया था, अच्छे बहू मिली, बेटा हो गए, इंग्लिश मीडियम में उनको भर्ती कर दिया, पढ़ रही थी। तो जब बंदी बना के ले गए, अब जेल में है, कितना हुआ 30-32, जेल में छुटकारा मिलना बड़ी मुश्किल है। ऐसी गलती किया था, अपनी देखी हुई बात है। वही बहू साधु बाबा जी के पास आ गई, कहते मेरे बेटा इतना सा गए, रो रही थी, बोलिए इसको कहाँ पढ़ाऊँ, हम कहाँ जाऊँ, मेरे सास जी विधवा है, ससुर कमाते थे और उनका चलाना मुश्किल है, मैं मेरे पतिदेव जेल में है, मैं कहाँ जाऊँ बाबा जी। क्या उत्तर दोगे? वही बात है, बचपना में कन्हैया जी को उनकी माता जी भीतर भीतर जैसे कुम्हार मटकी बनाते हैं और एक पत्थर भीतर देते हैं और ऊपर से मोगरी से पिटाई करते हैं, पिटाई पिटाई करके कुछ चिकना बनाते हैं। इसी प्रकार भीतर उसको आदर करो,
भीतर आदर रहे और बाहर पिटाई पिटाई करके चिकना बनाएंगे तो कलश बन जाएंगे, मटकी बन जाएंगे, घट बन जाएंगे, तरह तरह के बासन बन जाएंगे। इसी प्रकार ये मन जो है ना, वो जन्म जन्म का संस्कार लेके अब भी उसी प्रकार विषय को दौड़ रहा है। अब अपने आँख कहते हा बाजार में कितनी सुंदर साड़ी है, हा कितनी सुंदर गहना है, आँख देखता है उसको पसंद करता है। लेकिन ये भी देखो हमारा हिम्मत है या नहीं। तो इसी प्रकार अपने जीवन को हम सुधार नहीं करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ये भी कहते हैं एक चटपर पंजरिका स्तोत्र में, एक बड़ी सुंदर श्लोक है, कुरुते सुख रामा भोग पश्चात शरीरे दंत रोग यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापचरणं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते भज गोविन्दं मूढ़मते कुरुते सुख रामा भोग। हे युवक, हे युवती, ध्यान रखना ये कार्तिक महीना है। हमारे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने बार व्रत उपवास अमावस्या पूर्णिमा त्योहार किन्हें क्यों बनाया? बनाने का उद्देश्य एक है, जो जीव अपने जो जालमपुर आश्रम जाते हैं संन्यास आश्रम में, सिंह द्वार के ऊपर दो सिंह का मूर्ति है। एक माई पूछ रही थी, बाबा जी ये दोनों सिंह क्यों बनाया? तो सिंह इसलिए बनाया, आपके जीवन की कहानी उसमें छिपा हुआ है। संयम साधन करो और नियम पालन करो। कन्हैया जी के माता जी जिनसे उनने जन्म लिया था, देवकी के पिताजी ने जब अपनी लड़की को अपनी ससुराल भेज रहे थे तो उनको 200 हाथी दहेज में दिया। दूसरी बात तो छोड़िए, 200 हाथी का मतलब क्या है ना? जीवन में संयम साधन करो, नियम का पालन करो, तुम परमार्थ प्राप्त करोगे। नहीं तो जीवन में हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, कुत्ता जैसे जीवन मत बनाओ। दुर्गा माई का सवारी कौन है? सिंह। देवी देवताओं का सवारी जंगली पशु है। तो सिंह का मतलब क्या है? सिंह है संयम का प्रतीक। 12 साल छोड़ छोड़ के स्त्री सहवास वो करती हैं, और वही स्त्री सिंह ही। साधारण पशु जैसे उनका स्त्री स्वभाव नहीं है। तो स्त्री जाति का उनका जो है जन्म देने का सामर्थ्य बहुत लंबी लंबी है। कुत्ता, स्वार इन लोगों के जैसे नहीं है जंगली जानवर होने का। इसलिए हमारे माता दुर्गा जी ने उनको अपनी सवारी बना के रखा। मतलब स्त्री को अपने जीवन में संयम न हो। आपने जगत जननी सीता जी को देखा, सीता जी वनवास गई, राजपुत्री हैं, लेकिन जंगल में आपका गोदावरी के किनारे पंचवटी जंगल में पर्णकुटी पत्तियों से कुटिया बना के रहती हैं। लेकिन सोने का हिरण देख के उनके प्रति लालचा गई। सोने का हिरण होता है, उनका छाल ला दो। पति को प्रेरित किया, जाओ छाल ला दो, छाला मुझे चाहिए।
और उनकी कहने के कारण प्रेरित होके राम जी वही हिरण के पीछे दौड़ के गए धनुष बाण लेके। लेकिन थोड़ा सा दोनों मूर्ति सोच लेते, होना था हो गया। तो संयम जब जैसी स्थिति अपने जीवन में आएगा तब उसी प्रकार करना ही बुद्धिमानी है। नहीं तो जीवन में प्रतियोगिता हम करने लग जाएंगे। ये बनाया तो मुझे ये बनाएगा, ये पहना तो मुझे पहनना चाहिए। लेकिन देखो तो सामर्थ्य कैसी है। एक बच्चा उनका दादू का कुर्ता पहनने के लिए कोशिश करे तो कभी चलेगा क्या? धोती पहने तो चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। तो इसी प्रकार जीवन को संयमित बनाने के लिए हमारे क्रियायोग का अभ्यास करते करते क्या होगा न, असंयम जीवन को लौटा के संयमित बना देता है। एक बाबा जी बोल रहे थे, जे हमने जब शिव जी का मंदिर के में गया तो वहाँ पर क्या देखा न, हर एक मंदिर में तो देखा सांड बाबा जी हैं, लेकिन वहाँ पर सांड बाबा जी के सामने कछुआ बाबा जी विराजमान है। कछुआ तो सब जगह में नहीं है, कछुआ क्यों रखा है बाबा जी? न, कछुआ संयम का प्रतीक है। अतः भगवान का भक्ति करोगे, मनुष्य जीवन लाभ क्या है? तो तुमको पहले संयम साधन करना पड़ेगा। संयमी साधन किए बगैर वही आत्मदर्शन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हुआ हूँ, मेरा अंतिम गति क्या होगा? तो इसीलिए हमारे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने प्राचीन संस्कृति के माध्यम से सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए ही गीता जी का उपदेश के अनुसार, हे अर्जुन तस्मात् योगी भवार्जुनो, हे अर्जुन तुम योगी बनो। योगी बनकर योग साधना करोगे, ये जो आपका शरीर है, शरीर जवानी में अस्वस्थ हो जाए तो घर का ना घाट का। जिन्होंने घर का सभी का सेवा करने के लिए आए हुए हैं, वो अगर अस्वस्थ हो के बिछौना में पड़ा रहे तो क्या काम करेगा? सभी लोग कहेगा क्या हो गया? जवानी जो जवान है उनको ही सेना विभाग में भर्ती किया जाता है और जवानी के आखिरी में रिटायर कर देते हैं, क्योंकि ना ये समय वो काम नहीं कर पाता। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे 30 साल उम्र के भीतर तुमको आत्मज्ञान लाभ करने के लिए यत्नवान होना ही पड़ेगा। 30 साल के बाद क्या होगा ना, बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा सताते रहेगा। बुढ़ापा में शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है और व्याधि को हटाने के लिए ही आपका क्रियायोग। देखा ना गौ माता कितनी दवाई खाती है। हमारे जालमपुर आश्रम में इतने मोर हैं और इतने वहाँ पर नील गाय जंगल में, नील गैया जंगल में घूमती रहती हैं। दवाई कोई खिलाता है ना, खाती हैं, कुछ नहीं। जंगल का जीव है, बीमारी बिना बीमारी वो घूम रहे हैं, आराम से दौड़ रहे हैं, अपनी सभी का सेवा भी दे रहे हैं। क्यों? मनुष्य का क्यों ना, मनुष्य है असंयमी जीवन यापन करने वाले। शतं जीवति जद्दल्पम, 100 साल मनुष्य का गढ़ आयु है। निद्रा तदर्धहारिणी, बाल्य रोग जरा दुखोई तदर्थमपि निष्फलम। एक बाबा जी बोल रहे थे, पति पत्नी दोनों आश्रम गए थे तो पतिदेव कहते मैं सवेरे 4 बजे उठ जाता हूँ, उठ के मैं प्रातः भ्रमण करता हूँ और हमारे पत्नी को मैं कहता हूँ अरे उठ जाओ भैया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी उठो, सूर्योदय के पहले उठ जाओ, घर का काम काज करो। क्यों आलसी हो गई हो? उठती नहीं है, क्यों ना सवेरे का निद्रा ऐसी है जो सभी को जगाने के लिए नहीं है। हमारे उपनिषदों में कहते हैं उत्तिष्ठतो जाग्रतो
प्राप्यो वरान निबोधत खुरस्व धारा दूरत्व निशितया कवयो वदंती। उठो जागो, जैसे हमारे माता बहुत सारे यहाँ देखा ना कितनी गोपाल जी हैं, तो गोपाल जी को उठाने के पहले जसोदा को उठना पड़ेगा और गोपाल को पीठ में थपथपा के सुला दिया। गोपाल जाके तो माता जी का कोई भी काम करने नहीं देंगे। उनका आंचला पकड़ पकड़ के माई मुझे भूख लगी माई, बस काम ठप कर देंगे। तो माई को पहले उठना पड़े, इसके बाद हरे घर का काम काज सूर्योदय के पहले करके वो गोपाल को उठा को खिला के पिला के सिला के गौ चराने के लिए भेज देती थी। तो वही है गोपाल जी से कि क्या सीखा आपने? सारे संसार सीखने का जगह है। हम अगर नहीं सीख पाएंगे तो मनुष्य जीवन लाभ करना ही वृथा हो जाता है। हमारे गुरु जी बार बार कहते थे पशुओं के जैसे जीवन नहीं होना चाहिए, मनुष्य हो, अपने में होश ले आओ। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, और इसका आज तक गुरु जी का कहना ही लोग मानता नहीं है, खुद मनमानी करता है। खुद अपने को लाहिड़ी बाबा जी का पहले क्या है समय मैंने अपने को क्षुद्र ज्ञान करना ही तुम्हारा हितकारी है। लेकिन कोई सब कोई कहता है मैं बड़ा हो गया, जैसे छोटा बच्चा कहता है ना मम्मी मैं बड़ा हो गया मुझे कुर्ता खरीद दो, बड़ा कुर्ता पहनना चाहता है। हमारे हिंदू संस्कृति पुनर्जन्मवाद मतलब क्या है? हमारे लाहिड़ी बाबा जी ने पहले जन्म में जो साधना किया था उसी साधना को अधूरा करके परम धाम हो गए थे, परलोक हो गए थे। दूसरे जन्म में उनके गुरुजी ने द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर अपने चेला के लिए बैठे हुए थे। आसन उनका बिछा हुआ था, कमंडल रखा हुआ था, चमेटा रखा हुआ था। तो ही लाहिड़ी बाबा जी को उन्हें बुला लिया। अरे समाचरण, ओ समाचरण। लाहिड़ी बाबा डिफेंस कंपनी में नौकरी करते थे, सेना विभाग में, भारत के सेना विभाग में नौकरी करते थे। उन्हें तज्जुब हो गए, मैं नया नया यहाँ पर आया हुआ हूँ, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, ये नाम पुकार पुकार के मुझे बुला रहे हैं, बेग कौन है मैं भी नहीं जानता हूँ। सही है, पहले जन्म में आप कौन थे आपको मालूम थोड़ी है, नहीं है। अगर कोई जानकर बता दे तो पता चले। तो लाहिड़ी बाबा को पुकारने से लाहिड़ी बाबा द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर चढ़े। जाके देखा एक अनजान व्यक्ति है, जिनने फोटो देखा करीब 20-25 साल का जवान है, खड़े हैं धोती पहन के। मैंने पुकारा था, आओ आओ आओ, उनको बुला लिया, उनको कुछ वस्तु प्रसाद के रूप में खिला दिया और लाहिड़ी बाबा को कहा जाओ, एक कुटिया देख रहे हो गुफा, इसके भीतर घुस जाओ, खाली आसन पड़ा है तो बैठ जाओ। लाहिड़ी बाबा बैठ गए गुरु जी के आदेश के अनुसार। तो लाहिड़ी बाबा बिठाल दिया और बिठालते ही लाहिड़ी बाबा देख रहे थे मैं इसी आसन पर बैठा हुआ था, इसी गुरु जी का साधना में साधता था, और एक कमंडल मेरा ही है, ये दंड भी मेरा ही है। उन्होंने गुरु जी से कहा ये तो मेरा ही है। मैं मतलब क्या है कहने का, ये आप इसी जन्म में जो करेंगे अगले जन्म में वही भरेंगे। इसी जन्म में पशुओं जैसे जीवन जिया। गीता जी में सुंदर श्लोक है, अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त कलेवरम जह प्रयाति समद भावं याति नस्तत्र संशय। अंतिम समय जो जिस भावना से मरेंगे अगले जन्म उनको ऐसे ही मिलेगा। तो लाहिड़ी बाबा वही क्रियायोग वितरण किया, वही क्रियायोग परंपरा से आपको मिला है। आप भी साधना साधेंगे, आप भी उसी प्रकार फल प्राप्त करेंगे। एक बाबा जी थे जिनके नाम भरत ऋषि, उन्होंने अंतिम समय हिरण का चिंता करते करते अगले जन्म में हिरण हो गए थे। अतएव क्रियायोग कीजिए, भजो भजो वासुदेव
जपो जप वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे भज भज वासुदेव जपो जप वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे बोलो भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे जो जन किसी दिन वासुदेव रटे ते मिल जाए परम धाम रे भज भज वासुदेव जपो जप वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे वासुदेव है माता वासुदेव है पिता वासुदेव बंधु सखा वासुदेव विधाता वासुदेव है माता वासुदेव है पिता वासुदेव बंधु सखा वासुदेव विधाता वासुदेव है आत्मा राम रे वासुदेव है आत्मा राम रे भज भज वासुदेव वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे महायाकाश से ज्योति पुंज आया देवकी के उदर में जाकर समाया महायाकाश से ज्योति पुंज आया उदर में जाकर समाया योग है गुण का धाम रे योग है गुण का धाम रे भज भज वासुदेव जपो जप वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे रटो रटो वासुदेव नाम रे रटो रटो वासुदेव नाम रे बोलिए वासुदेव भगवान की जय श्री गुरुदेव महाराज की जय भोलेनाथ भगवान की जय आज का सत्संग की जय हरिलुट का आयोजन है मधुर वृंदाबने हरि नामे लुट पड़ेছে मधुर वृंदाबने हरि नामे लुट पड़ेছে मधुर वृंदाबने हरि नामे लुट पड़ेছে मधुर वृंदाबने गोपन साधन राखबी गोपन केउ जेन ना जाने गोपन साधन राखबी गोपन केउ जेन ना जाने हरि नामे लोट पड़ेছে मधुर वृंदाबने हरि नामे लुट पड़ेছে मधुर वृंदाबने हरि कथा श्रवण करे नामलो प्रेमेर बाण हरि कथा श्रवण करे नामलो प्रेमेर बाण हरिर घाट प्रेमा बेशे करलो परित्राण हरिर
ঘরের কোণে, মনে বনে ঘরের কোণে, যেথায় যেমন স্থানে হরি নামের লুট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে। হরি নামের লুট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে, হরি নামের লুট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে। মনের ঝোলাই ভরে নেড়ে পেলিয়ে সুযোগ, মনের ঝোলাই ভরে নেড়ে পেলিয়ে সুযোগ, টাল বাগানা করতে গেলে বাড়বে যে দুর্ভোগ। তোর টাল বাগানা করতে গেলে বাড়বে যে দুর্ভোগ। বাবা রোগের মহৌষধি, বাবা রোগের মহৌষধি, এ তুই কানের কানে। হরি নামে লোট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে। হরি নামের লুট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে, হরি নামের লুট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে। গোপাল এলো গোপী এলো, এলো ব্রজেশ্বরী। গোপাল এলো গোপী এলো, এলো ব্রজেশ্বরী। মিঠাই মন্ডা ফুল বাতাসা প্রসাদ দিলেন হরি। মিঠাই মন্ডা ফুল বাতাসা প্রসাদ দিলেন হরি। যে যেমন তার তেমনি হবে হরি গুণ গানে, যে যেমন তার তেমনি হবে হরি গুণ গানে। হরি নামে লুট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে। হরি নামের লুট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে, হরি নামের লুট পড়েছে মধুর বৃন্দাবনে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ব্রহ্ম গুরু জয়, ব্রহ্ম গুরু জয়, শিবায় নমঃ। ওম ব্রহ্ম গুরু জয়, ব্রহ্ম গুরু জয়, ব্রহ্ম গুরু জয়, শিবায় নমঃ। ওম ব্রহ্ম গুরু জয়, ব্রহ্ম গুরু জয়, ব্রহ্ম গুরু জয়, শিবায় নমঃ। ব্রহ্ম গুরু গুরু জয়। গুরু महाराज जी की जय। भारतरश्मि माता की, नर्मदा माता की, अन्नपूर्णा माता की, सहज क्रिया योग साधन की, बाबा जी महाराज जी की, श्री श्री लाहिड़ी बाबा की, श्रीमद स्वामी गिरी गुरु महाराज जी की, श्रीमद स्वामी सुत्तानंद गिरी गुरु महाराज जी की, श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरी गुरु महाराज जी की, आपन आपन गुरु महाराज जी की, आपन आपन माता पिता की, धर्म की, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, भारत माता की, गुरु महाराज जी की, आज का सत्संग की, उपस्थित भक्त वृंद की। नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमो नारायणाय। बोलिए परमहंस ज्ञानानंद महाराज जी की जय। परमहंस ज्ञानानंद महाराज जी की जय। परमहंस ज्ञानानंद महाराज जी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु, ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु, ओम सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्।